Hello my dear students, welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. So this is the last chapter of our last lecture of our chapter 2, ठीक है, and we will be finishing this chapter today. ठीक है, और डेफिनेटली आपको अब तक ये पता चल गया होगा कि भाई हम लोग को कितना ज़्यादा लेवल पे स्टडी करनी होती है फॉर दी कंपटीशन लेवल, एंड ऑब्वियसली वी आर यूजिंग द बेसिक स्टैंडर्ड, राइट. हम बहुत ही बेसिक से अपवर्ड की तरफ चलते जा रहे हैं. सो वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दी 6th, 7th and 8th Olympiads. We do also prepare here on this platform for the NTSC, NSC, JS, PRMO, and obviously we do cover up for your school examination syllabus, alright. And in all such thing, in the whole process, this whole team will be helping you in this, achieving your targets and all. Alright, if you want any DPP or study material, you can join our Telegram channel according to your classes, and then you can have it. But you have to go on the Telegram app, and then you have to write the code according to your classes. For class 6 it is TTB006, and then you have to write that on the search box, right, and then you can join the channel, and then you can access all the DPPs and study materials available there. Alright, I want to tell you one important thing, and that is really important for the person who really wants to crack the competition, who is not a very hard working person, and can always point out where he need a direction and all. ठीक है, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्शन मिलना आपके लाइफ में बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आप डायरेक्शनलेस होकर एक फिक्स्ड कंपटीशन के लिए स्टडी नहीं कर सकते. ठीक है, आप स्कूल एग्जामिनेशन के लिए भी स्टडी करते हैं, पर अगर आप बहुत सारा स्टडी मटेरियल ले लेंगे, बहुत ही कंजस्टेड मैसी वे में स्टडी करेंगे, तो आप स्कूल एग्जामिनेशन को भी क्रैक नहीं कर पाएंगे. सो इट इज़ वेरी मच बेनिफिशियल दैट you should use a very much organized and structured study material which can help you both in the competition and the school examination. Alright, and really I wanted to tell you this thing, what we have prepared for you for this purpose only, definitely. So what you have to do, you have to go on this website www.talkingtextbooks.in, and then you can get such types of packages there according to your classes. There are various packages for various classes. All right, now this is an example. ठीक है, this covers foundation and Olympiad. ठीक है, foundation and Olympiad. Do you get the thing about this, that it is also strengthening your foundation and preparing you for the Olympiad level education, right? So these are the things you will be getting: comprehensive study material, recorded in live classes by TTP experts, homework submission, bi-weekly quizzes, and periodic test papers. All such things will be available to you. Now you must know what you have to do. You have to watch these lectures, which are definitely free for everyone. You can definitely get that. You should use comprehensive study material too, because that will give you a direction in a particular way, how you should study, how you should take yourself from the lower level to the higher level, how you can adopt to the question, because there are various types of questions. Some questions are very much direct, some questions are like very much tricky questions, and in Olympiad level there must be very tricky much questions. So you get the intention or the idea about all the questions, all the things you are going to study, all the concepts, right? And that what you will getting in this whole study package. You will be doing homework, you will be submitting homework through the Google Classrooms, and you will be getting access to the bi-weekly quizzes. That means you will be testing yourself how much you have learned from a particular lesson, all right, particular lecture, right? And these periodic test papers will help you learning the thing that we can obviously do a lot by using the periodic test papers, because periodic test papers will give you a very much direction or very much idea about how type of questions you will be getting in the competition or the school level examinations, right? So these are the things you have to click on buy now, then you will be forwarded on this page. Now this is the price details page, right? And you can see the cost is 9,000, but if you write here CYLIVE, if you write this code, this is E, alright. If you write this code, you will be getting 30% discount
2,700 amount will be deducted from the 9,000, and now the package will be of 6,300. So these much features, these much directional things, these much helping things will be getting in just 6,300. all right, and you have to click on buy package. Now you will be forwarded on the page which are having options you can pay from. Now if you have any query related to which packages should you choose, which will be beneficial, which will be not, then you can always go on this number. You can call us on this number, and you will be getting resolved, or all your queries will be resolved on that. all right, and the other thing I wanted to tell you is that if you want to just know where you stand in the competition or how much you know, you can join the test series too. On that test series, if you apply this code on that test series, you can also get 30% discount on that test series. all right, so you can join such type of whole package, or you can join the test series, and whatever you may feel comfortable in. So this is the important thing I wanted to tell you. Now let's move on to the lecture. This is lecture 5. So just take out your books, take out your copies, start doing it, right, and promise yourself you will be watching the whole lecture, you will be making notes, proper notes, and you will be revising. Now this is the last lecture, right, so I would recommend, and I hope that you have done all the revision from the chapter 1 and now the chapter 2, right. So it is a very good thing that if you revise it on a daily basis, revise one topic a day, 2 topic a day, you can do that obviously, because revision will only take 1 hour of your time. Okay, so you can do that, you can revise on a daily basis, because that only make you a smart student. Unless you do it, you should do it. all right, now see, this is the lecture 1. We will be dealing with distance, speed and time. All 3 things we will be dealing with. all right, and let's move on. First I wanted to tell you what is distance and what is displacement. Everyone knows what is distance, because this is a very basic term, and I already explained little bit of it in the first chapter. all right, so distance kya hota hai? Distance means the actual path covered by a body. Just imagine that you go from your home to the market, right. आप जाते हैं first 2 kilometer in the north direction, and then 3 kilometer in the south direction. all right, let's say you do that. all right, now it is not very much comfortable like going in the opposite direction. That means you are going back, right. Now see, what you did is the actual path you have covered is the distance. Let's say in this example, this is your home, right, with very much eyes. This is your home and this is your school. Let's imagine that these are this. Now tell me how you are going to go. अगर आप अपने घर से स्कूल में जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो I am obviously supposing that you will not go through like directly this, not at all, right. You will be going by a road, right. Even if you use bicycle, if you walk, you can always choose the definitely much paved path. So घर से आप स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, एंड यू आर टेकिंग दिस रोड. नाउ द डिस्टेंस व्हाट विल बी? डिस्टेंस क्या होगा कि आपने ये जितना कवर अप किया पाथ, देन यू मूव हेयर, देन यू मूव हेयर, देन यू मूव हेयर, देन यू मूव हेयर. पूरा जो डिस्टेंस होगा, पूरा जो लेंथ होगा, हाउ मच किलोमीटर्स यू हैव वॉक्ड विद योर लेग्स, दैट वुड बी द डिस्टेंस. all right, that would be the distance, means the actual path you have covered, that would be the distance, right. And displacement means the distance between your starting position and your final position. That means this is your starting position, okay. You can say initial or the starting position. Let me write it. This will be your starting position, या फिर दिस कैन ऑल्सो बी सेड एज इनिशियल पॉइंट, ठीक है. नाउ सी, द स्कूल वेयर यू वांट टू रीच, दैट वुड बी द फाइनल पॉइंट, राइट. सो दिस कैन बी ट्रीटेड एज द फाइनल पॉइंट, और दिस कैन बी सेड एज एंडिंग पोजीशन. Alright, so you are getting the idea about distance, right. If you walk actually, then the actual distance you have covered will be the distance.
but the distance between the starting point and the initial point will be what? The displacement. That means displacement को कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन सा पाथ चूज कर रहे हैं. हो सकता है आप स्कूल इस पाथ से नहीं किसी और पाथ से कवर अप के जाना चाहें. हो सकता है पहले आप अपने फ्रेंड के घर जाएं, उसको पिकअप करें एंड देन यू मूव ऑन टू स्कूल. हो सकता है कि पहले आप मार्केट जाएं फिर आप स्कूल जाएं. बट इसमें कौन चेंज होगा? आपका डिस्टेंस चेंज होगा, बिकॉज आप एक्स्ट्रा वॉकिंग कर रहे हैं, आप एक्स्ट्रा मूव कर रहे हैं, राइट? आप एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट विल बी द सेम. डिस्प्लेसमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा पाथ चूज कर रहे हैं, ठीक है? तो आपका पाथ चूज करने पे कौन बदलेगा? सिर्फ डिस्टेंस बदलेगा, ठीक है? बिकॉज दैट इज द चेंज यू आर गेटिंग. सी, distance refers to the total length of the travel irrespective of the direction of the motion. That means आप कितना ट्रैवल कर रहे हैं उसका कितना पाथ लेंथ है, दैट यू विल बी गेटिंग. चाहे आप कोई भी पाथ यूज़ कर रहे हो तो आप बिल्कुल देख सकते हैं कि आप जहाँ जा रहे हैं, जितना डिस्टेंस कवर अप कर रहे हैं, जितना पाथ ट्रैवल कर रहे हैं, दैट वुड बी द डिस्टेंस, राइट? फिर आप किसी भी डायरेक्शन में मूव करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लिटरली, क्योंकि ये डिस्टेंस डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता. दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, राइट? नाउ डिस्प्लेसमेंट रेफर्स टू द डिस्टेंस मूव्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. इट इज़ द ऑब्जेक्ट्स ओवरऑल चेंज इन पोजीशन. दैट मीन्स आप कहाँ से कहाँ पहुँचे. योर स्टार्टिंग पॉइंट इज दिस, योर एंडिंग पॉइंट इज दिस. नाउ इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन व्हाट इज द लेंथ of the path in this particular direction? That means it can be just the length between the initial and the final point and nothing else in a particular direction. Definitely the direction is changing, है ना? लेकिन यहाँ पर आपका पाथ पे डिपेंड नहीं होगा. आप पाथ कोई भी चूज करें, डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज विल बी द सेम, ठीक है? इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. वी ऑल नो दैट इट्स एसआई यूनिट इज मीटर एंड द अदर यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस आर किलोमीटर, सेंटीमीटर, ठीक है? फिर इसी तरह आता है डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, राइट? कि हम नॉर्थ में कितना चले हैं, ठीक है? हमारा स्टार्टिंग पोजीशन, हमारा फाइनल पोजीशन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितना है, दैट इज द क्वेश्चन, ऑलराइट? दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट द वेक्टर. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट? एंड इसका एसआई यूनिट कितना है? मीटर. अदर कॉमन यूनिट्स हैं किलोमीटर, सेंटीमीटर. सो इट कैन बी ऑलरेडी यू कैन से एसआई यूनिट डिस्टेंस की, डिस्प्लेसमेंट की सेम होती है, ठीक है? एंड यू शुड नो भाई कि जो हमने देखा है कि स्केलर क्वांटिटी है डिस्टेंस एंड वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट. आपको ये याद रखना है, द एक्चुअल डिस्टेंस विल बी द व्हाट? एक्चुअल पाथ ऑफ द लेंथ कितना होगा वो होगा डिस्टेंस. और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर हम देखें अपना इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक के बीच का जो एक्चुअल डिस्टेंस होगा, दैट वुड बी व्हाट? द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू सम क्वेश्चंस. लेट्स से this is your first question we are doing here, all right? And try to do it with me, ठीक है? सभी बच्चे स्टार्ट हो जाओ, बिल्कुल अपने कॉपी में करना है इसे. Now see, a person starts walking towards east and covers 2 kilometer. Let's make a diagram for that. You should always use such type of diagrams for the direction questions, right? So this is east, this is west, this is, oops, this is north, really north. This should be the west and this should be the east. Let me use the eraser. So this is north, right? And the opposite one is south. This would be the north and this would be the south, right? Now अब हम लोग क्या कर रहे हैं? सबसे पहले वो कहाँ जा रहा है? सबसे पहले वो जा रहा है कहाँ पर? ईस्ट में जा रहा है एंड कवर्स 2 किलोमीटर. तो हम अपना स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से मानेंगे? ओरिजिन से, राइट? दिस इज द ओरिजिन, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट. तो यहाँ से वो क्या कर रहा है? ईस्ट में जा रहा है 2 किलोमीटर, राइट? तो वो यहाँ से चला एंड इट वॉक्स टूवर्ड्स द ईस्ट एंड लेट्स से दिस इज द 2 किलोमीटर, ठीक है? दिस इज द 2 किलोमीटर, राइट? एंड कवर्स 2 किलोमीटर. ही टेक राइट टर्न. अब जब वो ईस्ट पे था, ऑलरेडी 2 किलोमीटर चल चुका था. नाउ ही इज टेकिंग अ राइट टर्न. हाउ यू डिसाइड द डायरेक्शन? इन द डायरेक्ट टर्न. नाउ सी, आई एम फेसिंग दिस, राइट? है ना? आई एम फेसिंग ईस्ट राइट नाउ. आई एम फेसिंग ईस्ट. Now tell me what would be the right? Right will be the this one, right? And I will taking the right turn. That means I will moving towards the
south. So now he take right turn and walked 1 kilometer. That means he take a south turn and he walked 1 kilometer, right? This is the distance. This is the distance 1 kilometer. Now he is at this point. He is, let's say he is at B. ठीक है, तो जो पर्सन था वो सबसे पहले ईस्ट में गया 2 किलोमीटर. अब जब वो ईस्ट पे था, ऑलरेडी ईस्ट में है, एंड नाउ ही टेक्स अ राइट टर्न. राइट टर्न राइट हैंड की तरफ होगा, सो राइट टर्न दैट मीन्स साउथ, राइट, दैट मीन्स साउथ. तो ही इज नाउ, ही विल वॉक इन दी साउथ डायरेक्शन. Alright, and he walked 1 kilometer, so I write it 1 kilometer. Calculate the distance and displacement. Now let's calculate both. Definitely, let's see. Whenever you talk about distance, so distance is the total path length, right? That is what? Distance. So how much he walked actually, how much he covered the distance actually. He started from O and he went on to A 2 kilometer. That means he walked 2 kilometer, right? And then he walked in the south direction 1 kilometer. That means he actually walked in 1 kilometer. So when we are dealing with distance, we are not taking direction into the consideration. ठीक है, हम लोग डायरेक्शन को मान ही नहीं रहे हैं. अभी हम डायरेक्शन के बारे में सोचेंगे भी नहीं when we are talking about distance, right? तो जब हम डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, हमें सिर्फ एक्चुअल पाथ की लेंथ ही चाहिए, राइट? सो टोटल पाथ कितना होगा? O से A प्लस A से B. सो दैट मीन्स इट वुड बी हाउ मच? 2 किलोमीटर प्लस A टू B कितना होगा? 1 किलोमीटर. सो टोटल डिस्टेंस वुड बी 3 किलोमीटर. ठीक है, सो दैट इज द डिस्टेंस, दैट इज द टोटल डिस्टेंस द बॉडी कवर्ड, द पर्सन कवर्ड, राइट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको जानने की क्या ज़रूरत है? व्हाट शुड यू नो टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट? ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करने के लिए यू शुड डेफिनेटली नो व्हाट द इनिशियल पॉइंट, द स्टार्टिंग पॉइंट, दैट इज O. ठीक है, सो दैट इज द O, द स्टार्टिंग पॉइंट, and you should know what the final point. That means you should know this is the final point, right, where he ends. This is the point where he ends, right, and this is the starting point. So this O is the starting point, this B is the ending point. That means displacement is what? OB. This is the displacement. And now the direction is what? From the initial to the final. Now the direction is east south. You can say that, we can say that is east south. Now let's talk about OB. How to find OB? How to find OB? Use the thing I taught you in the tools, mathematical tools, right? I taught you. Now at that point हमें क्या करना होगा? How to calculate this length? What you will be doing is you will be finding O. कैसे? Let's say I will be telling you a theorem, ठीक है, that is known as Pythagorean theorem. ठीक है, what does it say? Pythagorean theorem आपको हेल्प करती है आपको लेंथ कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन उसके लिए आपको ध्यान रखना होगा यू विल बी गेटिंग सच अ राइट ट्रायंगल. नाउ दिस इज यू कैन टेक एज अ ट्रायंगल OAB. ठीक है, दिस इज अ ट्रायंगल. ठीक है, तो आपको क्या करना होगा? दिस मच डिस्टेंस, दैट इज द वेरी मच स्लैंट वन. तो आप उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? इट वुड बी OB का स्क्वायर. ठीक है, और जो इसका दोनों साइड्स होती हैं, जो दो साइड्स आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, उनका स्क्वायर हम लोग ऐड करेंगे एंड यू विल बी गेटिंग द लेंथ. उसका स्क्वायर का लेंथ आपको मिलेगा फाइनली. सो यहाँ पे आपको क्या करना है? OA का स्क्वायर करना है प्लस AB का स्क्वायर करना है. ठीक है, OA यानी ये दोनों 90 डिग्री पे है ना, देखो ये और ये 90 डिग्री पे हैं, तो इन दोनों का स्क्वायर को ऐड करेंगे. OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, एंड देन व्हाट यू विल बी गेटिंग? द स्क्वायर ऑफ दिस डिस्टेंस. OB का स्क्वायर आपको मिलेगा. ठीक है, तो नाउ लेट्स कैलकुलेट. OB का स्क्वायर इक्वल्स टू OA कितना है? 2 किलोमीटर, तो वी आर गेटिंग स्क्वायर ऑफ 2 प्लस AB कितना है? 1 किलोमीटर.
so we'll be getting 1 का square. Now what will be the final one? It will be 2 का square 4 plus 1, so we will be given 5. So OB का square is 5. OB square is 5, but we want what? OB. हमें तो सिर्फ OB चाहिए, square नहीं चाहिए. तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्क्वायर को 5 के पास पहुंचा देंगे. सो इट वुड बी रूट 5 किलोमीटर. सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट and the distance is 3 kilometer and the displacement is how much? Root 5 kilometer. That's how we are going to calculate. आपको क्या देखना है, हमेशा डिस्टेंस के लिए टोटल पाथ लेंथ देखना है, हमेशा डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या देखना है, आपको हमेशा इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट देखना है. आपको देखना है कहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, कहाँ से एंडिंग हो रही है, एंड देन यू आर गेटिंग द डायरेक्शन. ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ये है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि मैंने आपको इसमें सर्कल का जो बताया था एरिया, वो आपको पता होना चाहिए. ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है. चलिए, अ बॉय इज जॉगिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 2 किलोमीटर. लेट्स मेक अ जॉगिंग ट्रैक फर्स्ट. दिस इज अ जॉगिंग ट्रैक. ठीक है, हो सकता है आपको सर्कल ना लगे, बट ये मैंने एक सर्कल बनाया है. इमेजिन दैट इट इज़ अ सर्कल. अब देखते हैं कि भाई उसका जो रेडियस है, मैंने आपको बताया था रेडियस क्या होता है, सेंटर पॉइंट से जहाँ पे उसका लेंथ है, फाइनल है, वहाँ तक जो उसका डिस्टेंस होगा दैट वुड बी रेडियस. सो इट इज़ 2 किलोमीटर. ठीक है, सो द रेडियस इज 2 किलोमीटर. कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन ही जॉग्ड ओनली हाफ द सर्कुलर ट्रैक. लेट्स इमेजिन कि उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट था, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ए, एंड ही वॉक on this path and he jogged and he come on this point that is B. ठीक है, वो B पे आ गया. अब he started from A, he ended on B. अब आपको बताना है what is the distance and what will be the displacement, right? Let's talk about the distance first. What will be the distance? Distance is the total path length, right? ऑलराइट, नाउ सर्कल का पाथ लेंथ आपको कैसे पता चलेगा? फर्स्ट आई नीड टू टेल यू दैट आप सर्कल के लिए आप बात करेंगे, पूरे सर्कल की बात करेंगे, तो दैट वुड बी 2 पाई आर. ठीक है, तो हम देखना चाहेंगे कि लेंथ ऑफ सर्कुलर ट्रैक कितना होना चाहिए. लेंथ ऑफ सर्कुलर ट्रैक वुड बी 2 पाई आर. दैट आर इज द रेडियस, राइट, एंड पाई तो आपको पता है 22/7. ठीक है, नाउ सी, यहाँ पे आप देखेंगे 2 पाई आर. दिस इज द लेंथ ऑफ द सर्कुलर ट्रैक. एक कंप्लीट सर्कुलर ट्रैक का जो लेंथ होता है, बट वो तो हाफ ही मूव कर रहा है, हमने देखा है. ठीक है, ओनली हाफ द सर्कुलर ट्रैक. दैट मीन्स वी शुड डिवाइडेड इट बाय 2. तो लेट्स डू इट. ठीक है, तो हमारा जो डिस्टेंस आ जाएगा दैट वुड बी 2 पाई r divided by 2. That means pi r. Let's put all the values. 22/7 into 2. That we will be getting 44/7 meter. Sorry, kilometer. Because the unit is kilometer here, that's why it is 44/7 kilometer, right? अब हम बात करते हैं displacement की. What is the starting point? This is the starting point, right? This is the starting point. This is the ending point. Now see, इन दोनों के बीच में distance कितना होगा? कैन यू टेल मी? देखो, सेंटर से लास्ट पॉइंट और उसका जो एंडिंग है सर्कल का वहाँ तक का पॉइंट, दैट वुड बी द रेडियस. तो इट विल बी 2 किलोमीटर, राइट. और सेंटर से ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे बी पॉइंट तक, तो भी 2 किलोमीटर, क्योंकि पूरे सर्कल का जो रेडियस होता है वो क्या होता है, सेम होता है. तो व्हाट ऑल वी हैव टू डू इज टू ऐड 2 किलोमीटर, दैट वुड बी द डिस्प्लेसमेंट, राइट. तो लेट्स टॉक अबाउट द डिस्प्लेसमेंट. Distance between initial and final point. ठीक है, तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली आपको करना है 2 किलोमीटर
plus 2 kilometer equals to 4 kilometer. So that is the displacement, and 44 by 7 is distance. That's how you should calculate the distance whenever a circular thing, a circular road, a circular track is given to you. Okay, so that's how you should calculate the distance. Now move on to our next question. An object moves from point A, he moves from point A, okay, to point B and to point C. Okay, so that's how he moved. First एक object ने क्या किया? Oh my God, let me choose a pen first. A से जो object है वो गई B तक, ठीक है, then वो गई B से C तक, ठीक है, then back to point B. Now C से वापस B तक गई, ठीक है, and then to point C along the line. अब वो again जो है C तक पहुंच गई, ठीक है. क्या किया? A से B, B से C, C से फिर से B, B से फिर से C, ठीक है. So that's how it moved. A to B, B to C, फिर C to B and then B to C. इस तरीके से उसने क्या किया? अपना जर्नी किया. Now find the distance covered by the moving object. हमें डिस्टेंस पता करना है. डिस्टेंस मीन्स द टोटल लेंथ कवर्ड, राइट? सो लेट्स सी हम डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. सो द डिस्टेंस इक्वल टू A to B. सबसे पहले उसने A B कवर अप किया एंड देन B to C. फिर उसने बी सी कवर अप किया, देन सी टू बी, देन सी बी कवर अप किया, देन बी टू सी, देन बी टू सी कवर अप किया, राइट? सो ए बी के बीच में कितना डिफरेंस है? 0 किलोमीटर से लेके 5, तो दीज आर 5, ए बी 5 किलोमीटर, देन बी टू सी 5 to 9, हाउ मच किलोमीटर? 1 2 3 4, राइट? तो 4 किलोमीटर. फिर सी टू बी अगेन 4 किलोमीटर, फिर B to C अगेन 4 किलोमीटर, ठीक है. तो दैट वुड बी हाउ मच? 4 4 4, दैट मीन्स 12 प्लस 5 17 किलोमीटर, राइट? ऐसा हम कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट. स्टार्टिंग पोजीशन उसका क्या था? A, ठीक है, स्टार्टिंग पोजीशन क्या था? A, एंड अब उसका जो फाइनल पोजीशन है वो है C. That means initial point, that is the starting point, ठीक है, और है ये हमारा फाइनल पॉइंट, राइट? तो तुम मुझे बताओ स्टार्टिंग से फाइनल के बीच में कितना डिस्टेंस है? ओनली 9 किलोमीटर. सो द डिस्प्लेसमेंट इज 9 किलोमीटर. दैट इज A to C. That's how we are going to deal with the questions involving distance and displacement. ठीक है, आपको हमेशा रिमेंबर करना पड़ेगा दैट डिस्प्लेसमेंट में आप हमेशा इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन देखेंगे एंड डिस्टेंस में आप क्या करेंगे? आप टोटल लेंथ को, एक्चुअल जो लेंथ कवर की गई है उसको देखेंगे, ठीक है. चलिए अब मैं आपको बताती हूँ व्हाट इज स्पीड. स्पीड का मतलब है कि आप कितना फास्ट मूव कर रहे हैं, आप कितना स्लो मूव कर रहे हैं, दैट टेल यूज द स्पीड. अगर आपका फास्ट स्पीड होगा दैट मीन्स यू आर मूविंग वेरी फास्ट, राइट? अगर आपका स्लो स्पीड होगा दैट मीन्स यू आर मूविंग वेरी स्लो. सो speed is how fast you are traveling, that is the speed, right? Now let's talk about its formula. Its formula will be, I hope कुछ बच्चों को तो पता होगा, definitely कुछ बच्चों को पता होगा कि जो speed होती है उसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है? distance divided by टाइम, दैट इज द फॉर्मूला, ठीक है. अब देखेंगे जो, अब हम इसका अगर यूनिट की बात करें, ठीक है, ये तो है स्पीड का फॉर्मूला. अगर हम यूनिट की बात करेंगे तो क्या होगा? स्पीड की यूनिट हमको कैसे मिलेगी? डिस्टेंस की क्या होती है? डिस्टेंस की होती है मीटर, टाइम की क्या होती है? सेकेंड. तो स्पीड की यूनिट क्या मिल जाएगी? मीटर पर सेकेंड, ठीक है. और जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेकर जाते हैं तो क्या हो जाता है? -1 पावर आ जाती है. दैट्स व्हाई इट इज मीटर पर सेकेंड, ms-1, ठीक है. तो अब हम क्या करते हैं, इसी तरीके से डिस्टेंस के भी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है. चलो चलो. An aeroplane covers a certain distance at speed of 240 km per hour in 5 hours. To cover the same distance in 1 hour, it must travel at a speed of, ठीक है. ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, ठीक है, लिटिल बिट हार्ड, लेकिन तुम सब कर लोगे. चलो हम स्टार्ट करते हैं.
एक एरोप्लेन कवर करता है सर्टेन डिस्टेंस, इसका मतलब डिस्टेंस बताया नहीं है, ठीक है। लेट्स से इट इज़ जस्ट समथिंग डी मान लेते हैं, ठीक है, डी डिस्टेंस है उसका, ठीक है, सर्टेन डिस्टेंस वी एज्यूम्ड इट डी एट अ स्पीड ऑफ 240 किलोमीटर पर आवर, दैट मीन्स 1 आवर में ही इज कवरिंग 240 किलोमीटर, राइट, एंड 5 आवर्स तक उसने जो है ट्रैवल किया वो डिस्टेंस, राइट। सो यू कैन से दैट स्पीड ऑफ द एरोप्लेन कितनी है 240, राइट, 240 किलोमीटर पर आवर, यू कैन से दैट, राइट। एंड द टाइम कितना गिवन है वहां पर, टाइम इज गिवन 5 आवर्स, ठीक है। नाउ सी आपको क्या बोला है, एक कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करती है वो, ठीक है, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करती है, तो लेट्स जस्ट फाइंड आउट द डिस्टेंस फर्स्ट। डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए आई विल बी यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ व्हाट, ऑफ स्पीड, अगेन I will be using the formula, स्पीड को हम कैसे लिखते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। इफ आई वांट टू नो द डिस्टेंस, इफ आई वांट टू नो द डिस्टेंस तो आई विल बी सेंडिंग टाइम विद द स्पीड, राइट। सो हमारा जो डिस्टेंस होगा उसे हम लिख सकते हैं स्पीड, यानी कि 240 किलोमीटर पर आवर इनटू टाइम कितना है 5, so it would be how much kilometer, 1200 kilometer, it should be 1200 kilometer, ठीक है। 5 zeros are 0, 5 fours are 20, all right, and 5 twos are 10, 12, तो it would be 1200 kilometer, ठीक है। तो ये तो आ गया टोटल डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग दिस टाइम, ठीक है। नाउ व्हाट इट इज आस्किंग, टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 1 आवर, अगर उसको पूरा ये वाला जो डिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया है, अगर ये 1 आवर में इसे चाहिए कि 1 आवर में ये इतना डिस्टेंस कवर अप कर ले, तो इट मस्ट एट ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ, तो अब इसका स्पीड क्या होगा। तो लेट्स मूव अगेन टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। यहाँ पे उसने बोला है कि नाउ सेम डिस्टेंस कवर करना है, तो डिस्टेंस वुड बी दिस, राइट, सेम डिस्टेंस। तो अगेन हमारा जो डिस्टेंस है वो कितना है 1200 किलोमीटर, ठीक है। अब वो यही डिस्टेंस को 1 आवर में कंप्लीट करना चाहता है, तो जो टाइम आ गया है वो कितना आ गया है 1 आवर, ठीक है। नाउ टेल मी द स्पीड अगेन हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, तो डिस्टेंस कितना है 1200, time is 1 hour, so the speed is 1200 kilometer per hour, ठीक है। so which one is to cover the same distance in 1 hour, ठीक है। so हमारा जो ऑप्शन है that is a very good, ठीक है, और हम लोग डेफिनेटली कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। देखेंगे हमारे जो ऑप्शंस हैं वो तो ये बिल्कुल भी नहीं आ रहे, हमारा तो 1200 आंसर आ रहा है, 1200 किलोमीटर 1 आवर, सो इट मस्ट बी, दीज ऑप्शन मस्ट बी इनकरेक्ट डेफिनेटली। सो हमारा इनमें से एक भी ऑप्शन नहीं आया है, ठीक है। सो दैट वुड बी कंसीडर्ड एज अ बोनस क्वेश्चंस। कभी भी जब भी आपके इन चारों ऑप्शंस में से कोई भी सही आंसर नहीं आता है तो दैट वुड बी द बोनस क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इसको फटाफट नोट कर लो, आंसर हमारा बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट हमारे जो ऑप्शंस हैं वो थोड़े से गलत हो गए, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन, आप फटाफट से इसे नोट करो, देन वी विल बी मूविंग ऑन। चलो अब हम मूव ऑन करते हैं। अगेन ए क्वेश्चन, इफ अ पर्सन वॉक्स एट 40 किलोमीटर पर आवर इंस्टीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, तो क्या होगा, ही वुड हैव वॉक 20 किलोमीटर मोर, द एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम इज। नाउ सी हम इन क्वेश्चंस को किस तरीके से डील करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं, फर्स्ट जो भी गिवन हमें है उसको फटाफट से हम लोग नोट करते जाते हैं, ठीक है। नाउ सी इफ अ पर्सन वॉक्स एट 14 किलोमीटर पर आवर इंस्टीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, कोई एक जो पर्सन है उसका स्पीड अगर 10 किलोमीटर पर आवर होता है, ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर है, दूसरा
उसने बोला है अगर वो 14 किलोमीटर पर आवर बोलता है, ठीक है, तो नाउ सी व्हाट इट इज सेइंग दैट ही वुड हैव वॉक 20 किलोमीटर मोर, ठीक है। अगर कोई इंसान 10 किलोमीटर पर आवर पर है, ठीक है, एंड इट इज वॉकिंग इंस्टीड ऑफ 10, वो 14 वॉक करता है, ठीक है। अगर वो 10 किलोमीटर कर रहा होता तो और वो 14 कर रहा होता, जब इन दोनों में डिफरेंस देखा गया तो क्या देखा गया कि इस बंदे ने जितना डिस्टेंस कवर अप किया है, ठीक है, उसने 20 किलोमीटर और डिस्टेंस कवर अप कर लिया है, 20 किलोमीटर और डिस्टेंस कवर अप कर लिया है, ठीक है। और जो ऊपर वाला बंदा है उससे, ठीक है, लेट्स से इसने x डिस्टेंस कवर अप किया। जब ये पर्सन 10 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा था तब उसने x किलोमीटर मूव किया, ठीक है। नाउ सी जब वो 14 से, वो है इंसान जब 14 से कवर अप कर रहा था तो उसने क्या किया, 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा कवर अप कर लिया, जैसा पहली वाली स्पीड पर किया था उससे 20 किलोमीटर ज़्यादा मूव कर लिया, ठीक है। द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल बाय हिम इज, सो द एक्चुअल डिस्टेंस यानी कि ये जो x हमें पता करना है, वी शुड डू इट राइट। एंड व्हाट यू हैव बीन लिसनिंग कि भाई यहाँ पर हम लोग इजीली देख सकते हैं, टाइम वुड बी द सेम राइट। नाउ लेट्स फॉर a, इसको हम ना a बोल देते हैं, लेट्स कैलकुलेट a। सो टाइम इज सेम, सभी के लिए हम दोनों टाइम सेम ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और यहाँ हम लिखेंगे डिस्टेंस इज x, ठीक है, और जो टाइम है, टाइम स्पीड के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लेट्स से इट इज t, ठीक है, लेट्स से इट इज t बिकॉज टाइम इज फिक्स दोनों के लिए। दिस इज इक्वेशन 1। अब हम क्या करते हैं, सेकेंड कंडीशन के लिए बनाते हैं इक्वेशन 2, ठीक है, 14 किलोमीटर पर आवर के लिए। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अगेन ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अगेन अब की बार स्पीड कितना है 14, तो इट शुड बी 14 किलोमीटर पर आवर, और अभी कितना कर रहा है 20 किलोमीटर प्लस x, तो इट इज व्हाट 20 प्लस x, ठीक है, ये उसका डिस्टेंस है, x से थोड़ा 20 ज़्यादा कर लिया है, एंड द टाइम वुड बी द सेम, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग x को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो x को फाइंड आउट करने के लिए व्हाट वी विल बी डूइंग इज, हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को किसी तरीके से x का वैल्यू जो x गिवन है, यानी कि ये जो नंबर गिवन है, ठीक है, x के बराबर है, उसको यहाँ पुट अप कर देते हैं, ठीक है। लेट्स से t का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग t इक्वल्स टू कितना लिख सकते हैं, x अपॉन 10, राइट। t का वैल्यू कितना लिख सकते हैं, x अपॉन 10, 10 नीचे चला जाएगा, और फिर अब हम इक्वेशन 2 में यहाँ पर t की जगह पे x अपॉन 10 लिख देते हैं, ठीक है। तो इट वुड बी हाउ मच, इट वुड बी x अपॉन 10, ठीक है, t की जगह हमने क्या किया, x अपॉन 10 लिख दिया है। अब हमारा 14 बचा और यहाँ पर 20 प्लस x बचा। देन लेट्स कैलकुलेट, 2 5s are 10, it's 5, 2 7s are 14, so it should be how much, it should be 7x divided by 5 minus x equals to 20। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वापस से LCM LCF जो आप लोगों ने सीखा है उसे कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। सी 7x माइनस 5x डिवाइडेड बाय 5, और ये जो 5 है उसको हम कहाँ लेकर जा रहे हैं, दूसरी तरफ, इट्स 7, ठीक है। यहाँ पर हम 20 इंटू 5 कर देंगे तो इट वुड बी 100, ठीक है। फिर 2x इक्वल्स टू 100, सो x इक्वल्स टू 50, दैट मीन्स उसने 50 किलोमीटर जो है ट्रैवल किया, एंड विच वन इज द आंसर, A इज द फाइनल आंसर, ठीक है। यहाँ पे आपको पूरा क्या बोला गया है, लेट मी टेल यू द पाथ,
ठीक है। चलो देखो वापस से इसी क्वेश्चन को करते हैं वापस से। देखो ये क्या बोल रहा है कि एक पर्सन वॉक करता है 14 किलोमीटर आवर पे, ठीक है। अब वो 14 किलोमीटर पर आवर पे मूव करता है, तो वो क्या करेगा, 20 किलोमीटर ज़्यादा मूव कर गया, ठीक है। कब, किस टाइम से, अगर वो 10 किलोमीटर पर आवर पे करता, वॉक करता, ठीक है, तो वो x किलोमीटर फाइंड आउट करता, इतना वॉक करता, ठीक है। लेकिन अब उसने क्या किया, अपना स्पीड इंक्रीज कर दिया। अब जब उसने अपना स्पीड इंक्रीज किया तो वो 14 किलोमीटर पर आवर पे मूव कर रहा है। अगर वो 14 किलोमीटर पर आवर पे मूव कर रहा है तो वो सेम टाइम में 20 किलोमीटर ज़्यादा डिस्टेंस कवर अप कर लेगा। सो अब की बार डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर प्लस एक्स, मतलब पहले जो कर रहा था वो तो करेगा ही करेगा, एक्स्ट्रा 20 किलोमीटर और करेगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, टाइम वुड बी द सेम, तो ये जो फैक्टर है t और ये जो फैक्टर है t, ये दोनों ही केसेस में सेम रहेंगे। कौन कौन चेंज हो रहा है, स्पीड चेंज हो रही है जो कि 10 से 14 हो गई है, और सेकेंड जो डिस्टेंस चेंज हो रहा है जो कि 20 किलोमीटर ज़्यादा हो गया है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे इन दोनों केसेस में, फर्स्ट वाले केस में, सेकंड वाले केस में हम लोगों ने क्या फॉर्मूला लगाया है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। हम लोगों ने ये फॉर्मूला लगाया। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर 10 किलोमीटर 14 किलोमीटर दोनों का वैल्यूज पुट कर दिया, t का वैल्यू हमने कैलकुलेट करा इस तरीके से इक्वेशन 1 से। फर्स्ट वाले के साथ हमने क्या किया, t का वैल्यू कैलकुलेट करा। कैसे, देखो जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो नीचे की तरफ चल जाते हैं, जब हम उसको दूसरी तरफ लेके जाते हैं, इक्वल टू के ज्ञान लेके जाते हैं, तो हम लोग उसको डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे जब मैं t का वैल्यू कैलकुलेट करूँगी तो ये 10 कहाँ चला जाएगा, x के नीचे चला जाएगा। सो दैट्स हाउ इट इज़ गोइंग, ठीक है। अब मैंने क्या किया, जो हमारा सेकेंड इक्वेशन में t था उसकी जगह पर x अपॉन 10 को रख दिया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने सिर्फ इसका एलसीएम लिया है और इसको सॉल्व किया और फाइनली x का वैल्यू निकाला, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू डील विद सच डिफिकल्ट क्वेश्चंस। पर ठीक है, किसी को नहीं भी समझ में आया होगा तो भी चलेगा, ठीक है। सो योर होमवर्क फॉर टुडे इज यू हैव टू प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस अगेन, बिना देखे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ठीक है। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यूनिफॉर्म मोशन स्टडी करेंगे, कुछ यूनिट स्टडी करेंगे, ठीक है, कुछ इन्वेंशंस, एंड वी विल बी यूजिंग सम एक्स्ट्रा नॉलेज, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट, एंड डू स्प्रेड इट आउट अ लॉट। थैंक यू सो मच।